Students, today we are going to start Taylor's theorem for function of two variables. One variable के लिए already हम पढ़ चुके हैं. Statement देखो क्या है. If f of xy is a function of two independent variables x and y possessing continuous partial derivatives of nth order in some neighborhood of a point a b, and if a plus h b plus k is any point in this neighborhood, then there exists some theta lying between 0 and 1 such that f of a plus h b plus k will be equal to f of a b plus d of f of a b plus 1 by 2 factorial d square f of a b plus so on up to 1 by n minus 1 factorial d n minus 1 f of a b plus 1 by n factorial dn f of a plus theta h b plus theta k, where this last term is called remainder after n terms and sometimes denoted by Rn. And what is this d? D is an operator given by h curly by curly x plus k curly by curly y, and similarly d to the power n is the operator h curly by curly x plus k curly by curly n to the power n. Now what is the proof? Suppose g is a function, g is equal to f of xy such that x is equal to a plus ht and y is equal to b plus kt, and where 0 is less than or equal to t is less than or equal to 1. Now dx by dt क्या आ जाएगा? यहाँ से dx by dt h आ गया and dy by dt आ गया k. Now g is a function of x and y are further functions of t. So we can say that g is a composite function of t. तो जैसा हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किया है उसको यूज करते हुए dg by dt की वैल्यू आ जाएगी करली g by करली x into dx by dt plus करली g by करली y into dy by dt, and this is equal to h करली g by करली x plus k करली g by करली y, and this is equal to h करली by करली x प्लस k करली बाय करली y ऑपरेटेड अपॉन g. ये वाला जो g था ये हमने यहाँ बाहर निकाल लिया ताकि हम ऑपरेटर की वैल्यू निकाल सके. सो d बाय dt ऑपरेटर की वैल्यू हो गई h करली बाय करली x प्लस k करली बाय करली y, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में d से डिनोट कर रहे हैं जैसा कि हमने स्टेटमेंट में सिंपली d लिखा है ताकि लिखने में आसानी हो. नाउ d स्क्वायर g बाय dt स्क्वायर क्या होगा? d बाय dt ऑफ dg बाय dt. dg by dt की वैल्यू क्या थी? ये वाली थी आपकी ऊपर वाली वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी. तो इस वैल्यू को लिखने के बाद अब आपके पास देखो क्या आ गया, d by dt लेना है आपको अब इसका. तो इसका d by dt कैसे लिया जाए? d by dt की वैल्यू क्या थी? ये वाली थी नीचे वाली, तो ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे d by dt की, और ये एज इट इज. तो इट मीन्स ये जो ऑपरेटर है ये इसकी पावर 2 हो गई है. सो h करली बाय करली x प्लस k करली बाय करली y स्क्वायर इनटू g. प्रोसीडिंग लाइक दिस वी हैव d स्क्वायर n d टू द पावर n g dt n इज इक्वल टू h करली बाय करली x प्लस k करली बाय करली y to the power n into g. Now g is a function of single variable t and g to the power n t is continuous. g to the power n means nth derivative of g is nth derivative of g means ये वाला, and this is continuous in 0 1. Therefore by Maclaurin's theorem there exists at least one number theta lying between 0 and 1 such that g of t is equal to g of 0 plus t g dash 0 plus t square by 2 factorial g double dash 0 plus t to the power n minus 1 by n minus 1 factorial g to the power n minus 1 0. This is actually n minus 1th derivative, not power. This is n minus 1th derivative. Then t to the power n by n factorial g nth derivative theta t. अब हम इसमें क्या करें? t को 1 पुट कर दें. तो जब आप t को 1 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा g1 इक्वल टू g0 इक्वल टू g dash 0 1 by 2 factorial g double dash 0 plus 1 by n minus 1 factorial g n minus 1 0 and 1 by n factorial, and this is gn. एक्चुअली यहाँ पे आएगा थीटा, खाली थीटा, क्योंकि t की वैल्यू 1 हो गई है. तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थीटा t नहीं आएगा
बल्कि थीटा ही आएगा, क्योंकि टी की वैल्यू तो हम 1 पुट कर चुके हैं। तो इस तरह से देन आल्सो g of t is equal to f of xy, and so this is equal to f of a plus ht and b plus kt. Therefore g of 1 is equal to a plus h, यहाँ पे t को 1 पुट कर दिया, b plus k. g of 0 क्या हो गया, f of a b, क्योंकि यहाँ t 0 हो गया इसलिए. Now g and t की वैल्यू ये वाली थी, n टाइम्स ऑपरेटर gt. अब gn t की वैल्यू ही चाहिए थी एक्चुअली आपको, तो वो वैल्यू आपकी ये वाली आ रही है. देन दिस इज, अगर थीटा टी की निकालनी होती तो थीटा टी आ जाती. तो जी एन टी की वैल्यू आपके पास आ गई. दिस इज इक्वल टू h करली बाय करली x प्लस k करली बाय करली y टू द पावर n एंड f ऑफ a प्लस थीटा h प्लस b प्लस थीटा k. क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की है कि t इक्वल टू 1 पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जी एन थीटा टी की. तो यहाँ पे जब मैंने जी एन थीटा टी निकाला तो ये आ गया h करली बाय करली x प्लस k करली बाय करली y टू द पावर n एंड g थीटा t. आपको किस पे निकालनी है इसकी वैल्यू, व्हेन t इज इक्वल टू 1. तो जी एन थीटा टी की वैल्यू when t is equal to 1 will be equal to h करली बाय करली x प्लस k करली बाय करली y एंड जी एन थीटा टी. यहां से देखो किसके इक्वल आ रहा था आपका जी एन थीटा टी, जी एन टी ये आ रहा है ना, a प्लस एच टी के प्लस v प्लस के टी. अब t को तो 1 कर देना है, तो a प्लस और t किस में चेंज होगा, थीटा टी में. तो a प्लस थीटा h बच जाएगा और b प्लस थीटा k बच जाएगा. तो वही यहाँ पे आया है. तो इस वैल्यू को जब हम ऊपर यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी, दैट इज गिवन बाय द f of a plus h b plus k is equal to f of a b plus d f of a b and so on, and this is the result. लास्ट टर्म ये आएगी आपकी 1 by n factorial dn f of a plus theta h b plus theta k. अगर हम t को 1 पुट कर देते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज हो जाती हैं a प्लस h और y इक्वल टू a प्लस k. यहां से आपके पास h की वैल्यू हो गई x माइनस a और k की वैल्यू हो गई y माइनस b. तो d उस केस में जो कि h करली बाय करली x प्लस k करली बाय करली y था, वो क्या बन जाएगा, h की वैल्यू x माइनस a, y की वैल्यू k की वैल्यू y माइनस b. तो इस तरह से आपके पास आएगा. इसको यूज करते हुए आप एक और फॉर्म निकाल सकते हो टेलर्स थ्योरम की, और वो क्या है कि हम f of x y को इन टर्म्स ऑफ इन पावर्स ऑफ x माइनस a y माइनस b एक्सपेंड कर सकते हैं. और वो क्या बनेगा, मींस यही ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन जो है कि h की जगह पे आप x माइनस a लिख दो और k की जगह पे y माइनस b ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में. तो आपके पास यहाँ पे क्या कुछ बदल के आ जाएगा वो देखो. तो वो बदलने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू f of xy इज इक्वल टू f of ab प्लस x माइनस a करली बाय करली x प्लस y माइनस b करली बाय करली y ऑपरेटेड अपॉन f एट द पॉइंट ab. 1 by 2 फैक्टोरियल x माइनस a करली बाय करली x प्लस y माइनस b करली बाय करली y होल स्क्वायर f of ab 1 by n माइनस 1 फैक्टोरियल x माइनस a करली बाय करली x प्लस y माइनस b करली बाय करली y टू द पावर n माइनस 1 ऑपरेटेड अपॉन f of ab and plus rn, where rn is the remainder after n terms and is given by 1 by n factorial x minus a करली बाय करली x plus y minus b करली बाय करली y to the power n f of a plus theta h, h की जगह पे आ गया x minus a and b plus theta k, k की जगह आ गया y minus b. This is called Taylor's expansion of f of xy about the point ab in the powers of x minus a and y minus b. इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये f जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा करली f बाय करली x, जिसको कि मैं लिख पाऊंगी fx. तो इसीलिए इसी को मैंने ये ऐसे लिखा है, देखो नीचे
एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स ए बी। फिर ये जो एफ जब यहां आ जाएगा तो ये बन जाएगा करली एफ बाय करली वाई, एंड सो इसको मैं लिख सकती हूँ वाई माइनस बी करली एफ वाई एफ ऑफ ए बी। इसी तरह से जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या होगा, इस स्क्वायर को ओपन करने से आपके पास x माइनस ए का स्क्वायर आएगा और करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर आएगा ऑपरेटेड अपॉन f, वो क्या बन जाएगा एफ एक्स एक्स। फिर दूसरी टर्म क्या आएगी y माइनस बी का स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर ऑपरेटेड अपॉन f, वो क्या बन जाएगा एफ वाई वाई। और मल्टीप्लीकेशन की टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आने वाली है 2 टाइम्स x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी करली स्क्वायर करली एक्स करली वाई ऑपरेटेड अपॉन f। तो वो टर्म क्या बनेगी एफ ऑफ एक्स वाई। तो नीचे यही वाली टर्म्स लिखी गई हैं और इसी तरह की बाकी टर्म्स, जैसे यहाँ पे देखो 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी प्लस 2 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई ए बी एंड प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी। और इसी तरह से जब आप 3rd डिग्री टर्म खोलोगे तो 3 डिग्री की टर्म्स आएंगी, तो उसमें आपके पास जैसे आप क्यूब खोलते हो सेम टाइप से आपके पास ये वाली सारी टर्म्स आए। और ये सब हैं क्या, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जिनको कि आप पहले से ही इनकी नोशन सीख चुके हो, ये वाली इनकी सबकी नोशंस हैं। देन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन पावर्स ऑफ एच एंड के अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो वो तो हम पहले से ही जो निकालते रहे हैं वही की वही है। आप a और b की जगह पे एक्स वाई कर दो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स प्लस के कर लिया एफ बाई कर ली वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर कर ली स्क्वायर एफ बाई कर ली एक्स स्क्वायर प्लस 2h के कर ली स्क्वायर एफ बाई कर ली एक्स कर ली वाई के स्क्वायर कर ली स्क्वायर एफ बाई कर ली वाई स्क्वायर एंड प्लस इसी तरह से 3rd डिग्री की टर्म एंड सो ऑन। फिर है नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड y इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 0। तो 0 0 की नेबरहुड में कैसे निकाला जाता है, ये एक तरह से मैक्लोरेंस थ्योरम हो जाती है। अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे उसमें कि हम जो h है उसको x पुट करते हैं, तो इसी तरह से k को हम y पुट करेंगे तो पॉइंट 0 0 पे आ जाएगा। तो f ऑफ एक्स वाई की एक्सपेंशन क्या बनेगी, जो ये ऊपर वाली आपकी आई हुई है इसके अंदर आपको क्या करना है h को x को 0 पुट कर देना है, y को 0 पुट कर देना है, h को x और k को y। तो यही सब कुछ जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा f ऑफ 0 0 प्लस h की जगह x एफ एक्स कौन से पॉइंट पे 0 0 पॉइंट पे प्लस k किस में चेंज हो गया y में, फिर ये क्या हो गया एफ वाई कौन से पॉइंट पे 0 0 पॉइंट पे, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल h की जगह आ गया x एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 0 0 प्लस 2xy h x में चेंज हो रहा है k y एफ एक्स वाई 0 0 प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई 0 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये x क्यूब एफ एक्स 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 0 0 प्लस 3x स्क्वायर y है ना, तो यहाँ भी देखो x x y है 0 0 प्लस 3xy स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x y y है 0 0 प्लस y क्यूब है तो यहाँ भी y y y है 0 0 एंड प्लस सोन। इस तरह की टर्म्स आपके पास आएंगी एंड सो दिस इज द रिजल्ट। तो इन सबको आपने रिवाइज करना है और एग्जांपल्स पढ़ने हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में।